Okay. Good evening, everyone. When we are means we have started protein synthesis a day for yesterday, and that time we have talked about only requirements. What are the different components we need? That was my first part, and then yesterday we have discussed only about the few questions. Okay. So today actually I am going to start the protein synthesis main part. So what we have seen in the previous lecture is the whole protein synthesis you can divide into 5 different steps. It was before protein synthesis is going to initiate, we need to activate amino acid. Activation means you can call it charging of tRNA. Means we are going to load amino acid on the transfer RNA so that it will reach up to the protein synthetic machinery, protein synthetic process. So that was my activation that we have done in the first lecture. Today I am going to start from the activation, initiation, elongation and termination. So these portions, especially in the prokaryotic system, we will finish today because in that one also the termination is very small. Only a few things are going to happen. Main process you need to remember, you need to understand in the initiation and elongation way. So this was already we have done. We have seen how tRNA is going to be charged, how tRNA is going to be amino acid is going to be charged on the tRNA. So there we have seen in this case we are having amino acids. So all the 20 amino acids, for every amino acid we are having a specific amino acid tRNA synthetase enzyme. I have already told you what is the difference between synthase and synthetase. This amino acid is going to react with the enzyme, and in this process we require a amino acids. So these are the 3 components we require during the activation process. We require amino acid, we require enzyme, we require ATP, and later on we require tRNA. So these 4 things, not only 4 things, because ATP is going to involve, so obviously we require magnesium also. So these 5 things, 5 components we require. Sorry, this is 2 plus. So reaction occurs in the 2 step. In the first step, what we have seen, amino acid reacts with means it requires ATP in the process where AMP will be given. So enzyme going to combine with it AMP and ultimately with the amino acid. So we are going to have activated amino acid or amino acylated AMP. In the second step, the final step, tRNA comes. So this amino acid is going to be transferred to this tRNA either through type 1 enzyme or type 2 enzyme, or in the single 1 step reaction or the 2 step reaction that we have already seen, discussed it. And enzyme and AMP will be free. So enzyme is also free, AMP is also going to free. Ultimately this amino acid is going to be loaded on tRNA. So this is going to happen for all the 20 amino acid in the before going to start the protein synthesis. So now we have done the activation, we have already seen. Now I am going to talk about the initiation process. So activation of amino acid is clear for everyone, right? Yes, sir. Fine. The second second process in the way is initiation of the protein synthesis. So how it is going to initiate? So I have told you one thing, when we are going to, because in this case we require certain components. So protein synthesis starts at the, yesterday we have talked about the direction of the synthesis. So I have told you DNA synthesis direction, RNA synthetic direction means how RNA is going to synthesize, then how messenger RNA is going to be used during the protein synthesis. So direction in all the cases are 5 prime to 3 prime direction. So remember this one. Yesterday also we have seen Nick translation, that their direction also is 5 to 3 direction. So these direction you can remember it. And when you are going to talk about the protein synthesis, there we don't have this 5 prime to 3 prime direction. When we are writing a protein sequence, the direction in the protein sequence is one is amino terminal and second one is carboxy terminal, COOH group.
if you remember this protein sequence, right, I'm going to write it. This is one amino acid. If you remember peptide bond, how peptide bond are going to form, this is COOH, this is NH2, this is one amino acid. We are having another amino acid, H, N, H, C, H, R, COOH, OH. This is my second, this is one amino acid, this is second amino acid. So in this case, this OH is going to combine with this oxygen. So overall this will exit in the form of H2O, that is called a dehydration reaction, dehydrated condensation reaction, and one bond is going to form between this carboxy group and this amino terminus. So this bond is called as peptide bond. So if you will see this one side of the protein you are having free amino group, and another side of protein you are having free carboxy group. So this terminus is called as carboxy terminus, this terminus is called as amino terminus. Clear? So protein synthesis begins at the amino terminal end and proceed by the stepwise addition of amino acid to the carboxy terminal end. Every time a new amino acid will come and that will join at this place, carboxy terminus site, like in DNA, RNA, messenger RNA, or means those synthesis. Every time new nucleotide added at 3' side. Similarly here in the protein synthesis, every time a new nucleotide amino acid will be added and that will be at the carboxy terminus end. Is it clear? Yes, sir. Fine. So this is the rough diagram how it is going to happen. This is your for time being you can assume this is the E site, exit site, where free tRNA is there. So this is just for exit. This is my P site, this is the A site, and this is the incoming amino cell tRNA which is loaded with the amino acid. So this is your growing chain, this is your incoming amino acid. So this amino acid is going to combine with this one. We will see later on how it is going to form, how peptide bond is going to form, and then we'll see. So the direction of our ribosome movement, if you'll see, this is from 5' to 3' direction, and amino acid is growing. This is one side, it is having amino terminus, and this is the carboxy terminus. So every time new amino acid will be added at the carboxy terminus end only. Now if you will see the initiation process of protein synthesis, because I am talking about the prokaryotic system. So in prokaryotic systems, because ribosome contains two small subunit, one is a small subunit and one is large subunit. So in prokaryotic system, the ribosomal subunit is 30S and 50S only. So that's why that is written here. Eukaryotic system we will talk after this one. So in prokaryotic protein synthesis, what is our requirements are? So we require 30S a small ribosomal subunit. Then we require messenger RNA, because all the message for the protein synthesis, all the coding sequence is on the messenger RNA only. We require the first amino acid which is loaded on the tRNA, that is called as formilated methionine, loaded on tRNA. We require certain initiation factors, 3 initiation factors, that is initiation factor 1, initiation factor 2, initiation factor 3. So these 3 initiation factors we need. Then we require energy source. In this case here we require GTP. We have already used ATP, so now we are not going to use ATP anywhere, neither in the initiation nor in the elongation. Where we have to use energy further in during initiation or elongation, we will use GTP only, not ATP. ATP was required only during the activation process. And then we require second component of ribosomes. तो एक कंपोनेंट यहाँ हो गया, दूसरा कंपोनेंट यहाँ हो गया, तो मतलब हमें पूरी की पूरी राइबोसोम चाहिए. दोनों नॉर्मली जब हम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं तो दोनों राइबोसोमल सब यूनिट अलग अलग होते हैं. जब प्रोटीन सिंथेसिस करने का टाइम आता है तो दोनों सब यूनिट एक साथ आके मिलते हैं और कंप्लीट राइबोसोम बना के देते हैं हमें. एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज एनर्जी सोर्स, तो हमें मैग्नीशियम आयन भी चाहिए. सो दिस इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. और सब मिला के
at the end of the initiation process we are going to get a complex that is called as initiation complex. Initiation complex. ठीक है यहां तक. अब जब हम इनिशिएशन करने जा रहे हैं तो हमें चाहिए सबसे पहला स्टेप. मैंने क्या बोला कि राइबोसोम का 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट अलग अलग होता है. दोनों एक साथ नहीं होते हैं जब हम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं किए करते हैं तब. सो इन दैट केस 30S राइबोसोमल सब यूनिट नॉर्मली बाइंड्स कर किए रहता है दो कंपोनेंट्स. जब प्रोटीन सिंथेसिस करने का टाइम आता है तो एक इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड इनिशिएशन फैक्टर 1, दोनों का अपना अपना फंक्शन है. एक काम IF3 करता है, दूसरा काम IF1 करता है. अब दोनों का काम क्या क्या होता है. IF3 नॉर्मली प्रिवेंट करता है, जो IF3 आप यहां देख रहे हैं, दैट नॉर्मली प्रिवेंट्स 30S को 50S से बाइंड करने में. मतलब अगर 30S बाइंड किए हुआ है IF3 से तो 50S कभी भी इसके पास नहीं आएगा तब तक जब तक ये यहां पे है. So 30S can bind only with IF3 और 50S. किसी एक के साथ ही बाइंड कर सकता है, दोनों के साथ एक साथ नहीं जुड़ा रहेगा. So अगर आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन what is the function of IF3, so IF3 normally prevent the association of large ribosomal subunit with a smaller subunit. Clear? So that is the function of IF3, initiation factor 3. अब initiation factor 1 का क्या काम होता है. initiation factor 1 आके A साइट को ब्लॉक कर देता है. आप यहाँ देख सकते हैं IF3 पे A साइट पे ये आके बाइंड किया हुआ है. सो A साइट इज नॉट वैकेंट, नॉट फ्री. तो यहाँ आके कोई tRNA बाइंड ही नहीं करेगा क्योंकि इस साइट को IF1 ने ब्लॉक कर रखा है. जो एस बाइंडिंग साइट था ऑन राइबोसोमल सब यूनिट या राइबोसोम्स पे, उसको IF1 ने ब्लॉक कर रखा है. तो नो tRNA लोडेड विथ अमीनो एसिड या एक्टिवेटेड tRNA विल कम एंड इट विल बाइंड हियर. तो अब बचा कौन सा साइट जहां बाइंड करेगा, तो P साइट. तो जो पहला अमीनो एसिड लोडेड है tRNA के साथ वो यहां बाइंड करता है. इसी क्योंकि ये साइट खाली नहीं है. अब ये तो प्रोसेस हुआ पहला स्टेप का. इन द फर्स्ट स्टेप a small ribosomal subunit combines with two initiation factors, that is IF3 and IF1. The function of IF3 to dissociate or does not allow 50S to combine with 30S. IF1 का काम है, it blocks the A site so that the first amino acid whenever it will come, it will not bind to A site, it will come to the P site. Is it clear for everyone? Yes, sir. Okay. अब जब हमें पहला सब यूनिट जो है, नॉर्मली हमारा जो पहला एमिनो एसिड आकर बाइंड करता है दैट इज मिथियोनिन, और उसके जो जेनेटिक कोड हैं दैट इज AUG. हमें अब इस तरह से बाइंड करवाना है जो AUG शुड कम एट P साइट. इसके लिए कल हमने आपको बताया था कि इन आर प्रोसेस वी आर हैविंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हमने बोला था कोजाक सीक्वेंस और साइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस. वहाँ मैं आता हूँ उस पर. सो जो अभी हमने बात करी थी सेम चीज रिटर्न हियर. IF3 बाइंड्स टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड मेक इट फ्री इट फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स विथ द 50S सब यूनिट. तो 50S से बाइंड नहीं करने देता है, उसका काम है, ये काम है IF3 का. IF1 असिस्ट बाइंडिंग ऑफ IF3 टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड IF1 का एक और काम है दैट इट blocks A site so that ensuring that the initiation amino acid tRNA, ये tRNA which is loaded with formulated methionine can bind only at the P site. अगर ये साइट भी खाली होता, मान लीजिए इसमें अगर यहाँ IF1 ना होता, तो जब पहला एमिनो एसिड आता तो उसके पास दो ऑप्शन होता, या तो यहाँ बाइंड करे या यहाँ बाइंड करे. बट अगर हमने इसको ब्लॉक कर रखा, ये चेयर खाली नहीं है, तो एक ही चेयर खाली है, तो whenever that tRNA will come, it will bind at this site only.
Okay. Now, as mRNA binds to the small ribosomal subunit, IF3 helps. IF3 का एक और काम है that it helps assist correct position so that AUG will come at the P site. अब इस तरह से ओरिएंटेशन को ऑर्गेनाइज करें कि जो पहला एमिनो एसिड का कोड है AUG या जेनेटिक कोड है दैट शुड कम एट द P साइट. इसके लिए हमारे पास बाइंडिंग होता है अब आप ये मैसेंजर आरएनए है, दिस इज द राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट. स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पे हमारा P साइट है, A साइट है. A साइट इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर 1, P साइट इज वैकेंट. अब इसमें हमें इस तरह से करना है राइबोसोम को सो यहाँ पे AUG आ जाए, जो मैसेंजर आरएनए का AUG है वो कम आए P साइट पे. इसके लिए क्या होता है, आपके मैसेंजर आरएनए पे कुछ सीक्वेंस होते हैं दैट इज अप स्ट्रीम ऑफ द AUG सीक्वेंस एंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ये मैसेंजर आरएनए का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू विच कंपोनेंट, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए दैट इज 16S. ये स्मॉल कंपोनेंट है. हाउ मेनी राइबोसोमल आरएनए इट शुड बी, किसी भी राइबोसोम के छोटे राइबोसोमल सब यूनिट में कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने राइबोसोमल आरएनए होते हैं? एक ही. वो या तो प्रोकैरियोट्स का हो या यूकैरियोट्स का हो, दोनों में सिर्फ एक एक राइबोसोमल आरएनए ही होता है. यहाँ 16S होता है, वहाँ 18S होता है, राइट. तो हमारे मैसेंजर आरएनए का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हम प्रोकैरियोट्स के केस में साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस बोलते हैं, यूकैरियोट्स के केस में कोजाक सीक्वेंस बोलते हैं. सो दिस सीक्वेंस ऑफ mRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द 16S राइबोसोमल आरएनए. वो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होता है. इस आरएनए को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है, इस तरह से प्रोसेस करता है कि AUG कम्स एट द P साइट ओनली. ठीक है, ये सीक्वेंस की हमने बात करी थी कल, ये हमने दिखाया था आपको कि दिस इज द इनिशिएशन सीक्वेंस AUG फॉर अदर कंपोनेंट मीन्स फॉर अदर एवरी डिफरेंट जीन्स एंड दिस highlighted regions are called as Kozak sequence or the Sain-Delgado sequences, and this is the 16S ribosomal RNA and this is messenger RNA. messenger RNA का AUG यहाँ है, Kozak sequence यहाँ या Sain-Delgado sequence यहाँ है. this is complementary to the 16S ribosome. तो ये पोजीशन इस तरह से आता है कि AUG comes at the P site. So this consensus sequences means which normally does not changes is in an initiation signal for 4 to 9 purine nucleotides, 8 to 13 base pair to the 8 to 13 base pair previous to the AUG site, or this is called as Kozak sequence or Sain-Delgado sequences. Is it clear for everyone? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बाकियों के लिए भी आप यस बोलेंगे तभी मैं आगे फर्दर जाऊंगा. सो टिल नाउ वी हैव सीन ओनली 2 थिंग्स. पहला हमने देखा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, लोडिंग मीन्स चार्जिंग ऑफ tRNA, एंड सेकेंड इनिशिएशन प्रोसेस का पहला स्टेप जहां मैसेंजर आरएनए ने बाइंड किया स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से सो दैट AUG की पोजीशन पर है A साइट, सॉरी P साइट पे, और A साइट को हमने ब्लॉक कर रखा है. सो दिस इज द सेम थिंग, दिस इज AUG, दिस इज मैसेंजर आरएनए, दिस इज द Sain-Delgado सॉरी दिस इज द 16S राइबोसोमल सब यूनिट, और ये बाइंडिंग इस तरह से होता है. दिस इज नॉर्मली प्यूरिन रिच, ये भी याद रखिएगा, दिस इज प्यूरिन रिच रेसिड्यू. प्यूरिन मीन्स आइदर एडिनिन और गुआनिन रेसिड्यू. अब यहाँ देखें मैक्सिमम एडिनिन एंड गुआनिन ही होते हैं. So that this AUG will come at the P site. Now, जब हमने इतना कर लिया तो इसके बाद हमारे पहले एमिनो एसिड की एंट्री आएगी. अब पहला एमिनो एसिड बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोट के केस में आप जानते हैं दैट विल बी फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन लोडेड ऑन tRNA. So the loaded tRNA with FMET means formilated methionine,
अब मैं आगे रीजन आता हूँ वाई इट शुड बी फॉर्मेलेटेड। ये नॉर्मल मेथियोनिन क्यों नहीं होता है, वाई इट शुड बी फॉर्मेलेटेड, कम्स अलोंग विथ इनिशिएशन फैक्टर 2। अभी तक हमने IF1 यूज किया था, IF1 IF3 यूज कर लिया था, IF2 बचा हुआ था। सो दिस tRNA which is loaded with formallated methionine comes along with initiation factor 2. This IF2 is a small GTP associated protein, GTP binding protein। मतलब ये जो आएगा तो आपका 3 कंपोनेंट आ रहा है, this tRNA loaded with FMET, IF2 and IF2 will be associated with GTP. So IF2 GTP binds the initiator FMET tRNA and helps it to binds with the small ribosomal subunit at which position, कौन सा जगह खाली था राइबोसोम पे, ए साइट ब्लॉक है ऑलरेडी, पी साइट पे ए साइट ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है बिकॉज ऑफ IF1, पी साइट खाली है और ई साइट तो है ही नहीं। तो दिस tRNA विल कम्स एंड इट विल बाइंड एट द पी साइट। दूसरा चीज, ये tRNA पे कॉम्प्लीमेंट्री होता है AUG का एंटीकोडॉन। सो दिस tRNA बाइंड्स विद द, सो अभी तक हमने ये देखा, दिस इज द ओवरऑल स्टोरी, दिस इज द सेकंड स्टेप वेयर योर दिस इज द tRNA लोडेड विथ फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन कम्स along with इनिशिएशन फैक्टर 2, जो एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, इसको GTP चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंड इट विल कम एंड इट विल बाइंड एट द पी साइट। तो दिस इज आर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम, जहां आपका सारे चीज़ें हैं, सारे चीज़ें मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए होता। आपने अगर पहला स्टेप देखा होगा, हमने जो इनिशिएशन में लिखा था, यहाँ 30S राइबोसोमल सब यूनिट भी है, वहाँ मैसेंजर RNA भी है, इनिशिएटिंग tRNA भी है, IF1 IF2 IF3 भी है, GTP भी है, सिर्फ 50S अभी तक नहीं आया है, और बिकॉज हम एनर्जी यूज कर रहे हैं तो मैग्नीशियम तो है ही है। सो दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट, सॉरी, सो यही था ना, हाँ, वी आर हियर ओनली। सो इन दिस केस वी हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। क्लियर? Yes. अब Yes, sir. हमने इसको क्यों रखा था IF1, वाई आई हैव केप्ट IF1। IF1 का काम हमारे लिए क्या था, यहाँ सर एक्सेप्टर को ब्लॉक करके रखना, ए साइट को ब्लॉक करके रखने के लिए, ताकि पहला एमिनो एसिड जो है वो पी साइट पे आए। तो अब जब ये एमिनो एसिड आ गया tRNA और पी साइट पे बाइंड कर लिया, तो अब तो हमें IF1 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद IF1 और IF3 बाकी सारे चले जाएंगे। अब जो लेटर ऑन होगा वो मैं बताता हूँ आपको। अभी तक हमने ऑलमोस्ट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लिया था एज द लार्ज सब यूनिट ज्वाइंट्स। अब हमें 50S की कमी थी, तो वो लार्ज सब यूनिट ऑफ 50S विल कम एंड ज्वाइंट्स द कॉम्प्लेक्स। जैसे ही राइबोसोमल सब यूनिट 50S एंड 30S ज्वाइंट्स टुगेदर, दिस GTP जो IF2 के साथ एसोसिएटेड था, दैट विल बी हाइड्रोलाइज्ड, एंड हाइड्रोलाइज्ड होगा तो IF2 विल बी ऑलमोस्ट डन देयर वर्क। सो IF2 GDP विल गो ऑफ along with IF1, और बिकॉज 50S आ गया तो मैंने बोला था कि 30S के साथ या तो 50S बाइंड करेगा या IF3 बाइंड करेगा। सो 50S आ चुका तो अब IF3 भी चला गया, तो IF1 विल गो, IF2 along with GDP विल गो एंड IF3 विल गो। तो बचेगा क्या क्या, एक मैसेंजर RNA, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, large ribosomal subunit and tRNA loaded with formallated methionine at P site and A site is vacant now। प्रोसेस यही होना, इतना ही प्रोसेस होना। दिस इज कॉल्ड एज योर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स।
at the end of initiation process we will get this component only. Clear? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ फिर से आपको एक बार, मैं यहाँ बताता हूँ मैंने क्या बोला. अब भी हमने जो बनाया था, in this case we had a small ribosomal subunit and large ribosomal subunit at P site and A site. Here I had initiation factor 1, here I have IF3, here we are having tRNA loaded with formaldehyde methionine and इसके साथ हमारे था IF2 and GTP. Clear? This was, hello, this was our complex till now. अब मैंने बोला था कि if 50s will come, IF3 will not be there. 30s can bind only with IF3 और 50s, दोनों में से किसी एक के साथ ही रहेगा. सो बिकॉज 50s की हमें ज़रूरत पड़ती है तो IF3 विल गो ऑफ. तो यहाँ से हमने निकालना है IF3 और as soon as 50s comes there, this GTP is going to be hydrolyzed. तो वो प्रोसेस जिससे GTP का हाइड्रोलाइसिस होता है उसको बोलते हैं GTPase एक्टिविटी. GTPase. सो दिस IF2 इज हैविंग GTPase एक्टिविटी जो GTP को हाइड्रोलाइज कर देता है. मतलब गुआनिन, मोनोफॉस्फेट, अनोदर फॉस्फेट, थर्ड फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड GTP ट्राइफॉस्फेट 1 2 3. So this is going to be hydrolyzed from here. So you are going to have GDP plus phosphate. As soon as this GTP will be hydrolyzed, ये IF2 भी बाहर हो जाएगा. So IF3 तो बाहर हो ही गया, IF2 will also go off. और IF1 का काम हो चुका है ऑलरेडी, so this will also go. तो आपके तीनों इनिशिएशन फैक्टर निकल जाएंगे. IF2 along with GDP and phosphate will go. तो बचेगा क्या क्या? एक मैसेंजर RNA, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट, यहाँ पे tRNA एंड A साइट विल बी वैकेंट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So same thing is written here. A domain of large ribosomal subunit serves as GAP, एक्टिवेटिंग प्रोटीन. GAP आप अगर आपने अभी छोड़ दीजिए, अभी तब ज़्यादा नहीं, मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं. नॉर्मली हम GTP जब यूज करते हैं ना तो 3-4 प्रोटीन की एक्टिविटी हमें चाहिए होता है. एक प्रोटीन की एक्टिविटी मैंने आपको बताया GTPase एक्टिविटी, एक बोलता है GAP GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, और एक होता है गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर GEF. तो वो सारे प्रोटीन जहाँ GTP की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे IF2 के केस में, या फिर जब हम इलोंगेशन पढ़ेंगे वहाँ भी हमें GTP की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी इस सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है. या फिर G प्रोटीन्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कभी सिग्नलिंग में, तो वहाँ भी एक्सचेंज प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, एक्टिवेटिंग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है. तो वो सारे स्टेप्स जहाँ GTP का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर द एक्टिवेशन और फॉर प्रोसेसिंग, there normally we require GTPase activity, GTP activating proteins and exchange factors. तो इस केस में लार्ज सब यूनिट जो है दैट राइबोसोमल 50s दैट इज वर्किंग एज GAP, GTPase activating protein, और अल्टीमेटली GAP will be hydrolyzed by IF2 and they will go off. तो आपका GDP निकल गया, IF1 निकल गया, IF2 निकल गया, IF3 निकल गया. तो व्हाट इज लेफ्ट देयर? मैसेंजर RNA 30s 50s, P साइट पे tRNA एंड A साइट इज वैकेंट. सो दिस इज माय इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इज इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्लियर फॉर एवरीवन? हाँ, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ. हमने शुरू किया था 30s राइबोसोमल सब यूनिट से. चूँकि 30s को मुझे 50s से शुरू में अलग रखना होता है, तो उसके लिए हमने बाइंड किया था IF3 का.
IF3 separates 50s from 30s एंड IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1 जो ए को ब्लॉक करके रखा था। इसके बाद हमने मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आएंगे, तो मैसेंजर आरएनए शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे, उसको इस तरह से अरेंज करना है कि AUG की पोजीशन पी पे हो, इसकी डायरेक्शन, इसकी जगह जो हो वो पी पे आ जाए। उसके लिए क्या होगा, कैसे आएगा, उसके लिए आप मैसेंजर आरएनए में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस या साइन डेल्गानो सीक्वेंस, जो 30s में जो 16s राइबोसोमल आरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बनने के बाद ऑटोमेटिकली AUG विल कम एट दिस प्लेस। जब ये प्रोसेस हो गया उसके बाद हम 50s को बुलाते हैं, 50s कम्स, ये एक्टिवेट कर देता है IF2 का GTPase एक्टिविटी, तो GDP विल बी हाइड्रोलाइज जो इसके साथ आया था, एंड देन ऑल द 3 फैक्टर विल गो ऑफ एंड वी हैव गॉट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर माई प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस राइबोसोम का साइज क्या होगा, दिस वाज 30s एंड दिस वाज 50s, तो व्हाट राइबोसोम इज देयर नाउ, So 70s. now in the if someone is going to ask you what is this, which type of ribosomes present in the initiation complex of protein synthesis, so in the initiation complex, because both the subunits are there, so you are having 70s ribosomes here। ये सब कभी कभार छोटे छोटे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ CSR का क्वेश्चन होता है, जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमने बात किया था, मैंने फॉर्मेलेटेड की। सो फॉर्मेलेटेड हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स के केस में यूज करते हैं। अब फॉर्मेलेशन है क्या, दिस इज ए मिथियोनिन, दिस इज अगर आप मैं से इसमें से हटा दूं तो दिस इज मिथियोनिन। इन दिस मिथियोनिन हियर वी हैव एडेड फॉर्माइल ग्रुप। तो हमने क्या किया, इसमें एमिनो पोजीशन को ब्लॉक कर रखा। नॉर्मली आपने देखा था ना, क्या देखा था कि हम जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो हमारा चेन ऐसे इलोंगेट होता है। तो पहले एक एमिनो एसिड का, दिस इज माय एमिनो एसिड, यहाँ का NH2 ग्रुप, यहाँ का COH ग्रुप, यहाँ H, यहाँ R। तो जो नया एमिनो एसिड आएगा वो हम नॉर्मली इस डायरेक्शन पे बाइंड करवाते हैं, COH के साथ बाइंड करवाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब बट जब नया एमिनो एसिड एक आया तो उसके पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आपने एमिनो एसिड को ब्लॉक नहीं करा, जैसे मैं पहला एमिनो एसिड है, तो जो नया एमिनो एसिड आएगा वो यहाँ भी बाइंड कर सकता है, यहाँ भी बाइंड कर सकता है। तो हम नॉर्मली या प्रोकैरियोट्स नॉर्मली इस साइड को ब्लॉक करके रखते हैं, एमिनो ग्रुप को ब्लॉक करके रखते हैं, सो दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फर्स्ट एमिनो एसिड का अगर हमने NH2 को ब्लॉक कर दिया बाय फॉर्माइलेशन, तो वेन एवर ए न्यू एमिनो एसिड विल कम, इट विल कम एट दिस साइट ओनली टू फैसिलिटेट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एट द C carboxy terminus side. This amino group will be blocked by formilating. Clear? समझ में आई बात? क्या समझ में आई बताइए। सर जो फर्स्ट एमिनो एसिड है, जब सेकंड एमिनो एसिड बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो जब अगर वो फॉर्मुलेटेड नहीं होगा तो फिर एन टर्मिनल से भी बाइंड कर सकते हैं, फिर कार्बोक्सी टर्मिनल से भी। हाँ, तो हम एन टर्मिनल से बाइंड करना नहीं चाहते, इसलिए उस साइड को फॉर्मुलेटेड कर देंगे, तो सिर्फ कार्बोक्सी टर्मिनल से ही बाइंड हाँ, कर देंगे। मान लीजिए मेरे घर में 2 गेट बना हुआ है, मान लीजिए ये मेरा घर है और इसमें 2 गेट मैंने बना के रखा है, इधर से भी कोई एंट्री कर सकता है, इधर से भी एंट्री कर सकता है, बट मेरी जो इच्छा है ना कि जो आए वो इस फ्रंट गेट से आए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस गेट को मैंने ब्लॉक कर देना, बंद कर देना है, तो जो भी आएगा वो इसी डायरेक्शन से आएगा, इसी साइड से आएगा, क्योंकि ये गेट तो ऑलरेडी बंद है। तो सेम चीज़ हम यहाँ करते हैं, अगर एमिनो एसिड के पास 2 रिएक्टिव ग्रुप होंगे, एक एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सी टर्मिनस ग्रुप, तो दोनों तरफ से बाइंड हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक रास्ता को बंद कर देते हैं, ताकि जो नया एमिनो एसिड आए वो सिर्फ इसी साइड से आए। So that because of that one, we are going prokaryotes are going to use a formilated methionine.
ठीक है। और दिस इज बिकॉज हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, नॉर्मली हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोलते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ मीन्स हम उसको ट्रीट करते हैं एज ए प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सिस्टम। सो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट को हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स को सिस्टम को ट्रीट करते हैं। तो वहाँ भी फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन हम यूज करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यूकैरियोट्स के केस में, हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। हमारे केस में दोनों जगह नॉर्मल मिथ्योनिन ही हम यूज करते हैं। ओनली ए स्मॉल बेसिक डिफरेंस इन द टीआरएनए को हम फर्स्ट को बोल देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मिथ्योनिन आई मीन्स इनिशिएटर मिथ्योनिन। जो टीआरएनए पे मिथ्योनिन लोडेड है, सो वी आर गोइंग टू कॉल इट आई मिथ्योनिन, एंड बाकी जगह हम करते हैं टी नॉर्मल मिथ्योनिन। बट हमारे केस में फॉर्मुलेटेड की होने की जरूरत नहीं होती है, वो मैं बाद में बता दूंगा जब हम व्हेन वी विल टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सिस्टम। सो वी हैव सीन एक्टिवेशन, वी हैव सीन इनिशिएशन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट प्रोसेस इज, yes, tell me. Clear, sir, clear. Fine. The next is elongation. So when we are going to talk about elongation, that time we require the initiation complex which we have formed in the previous step. जहाँ हमारे पास मैसेंजर आरएनए था, 50S 30S 7 टोटल मिला के 70S राइबोसोम था, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन लोडेड ऑन टीआरएनए था, एंड ई साइट एंड ए साइट वाज ब्लैंक वैकेंट। तो यहाँ हमें वो कॉम्प्लेक्स चाहिए फ्रॉम द इनिशिएशन स्टेप्स। उसके बाद हमें चाहिए बाकी सभी 20 अमीनो एसिड लोडेड ऑन द टीआरएनए अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड्स। हमें 3 फैक्टर यहाँ भी चाहिए, 3 इलोंगेशन फैक्टर। वहाँ हमने बोला था इनिशिएशन फैक्टर IF, यहाँ हम बोलते हैं EF इलोंगेशन फैक्टर। तो इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS एंड इलोंगेशन फैक्टर G इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केस में हम उसको बोलते हैं 1A 1B एंड 2। सेम थिंग, सेम फंक्शन, ओनली नेम्स आर डिफरेंट। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं E इलोंगेशन फैक्टर TU इज इक्वल टू इलोंगेशन फैक्टर 1A, TS is equal to 1B and G is equal to 2। एंड बिकॉज मैंने बोला था कि इलोंगेशन में भी हमें जीटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जीटीपी चाहिए, और जहाँ जीटीपी चाहिए वहाँ मैग्नीशियम चाहिए। अब टोटल इलोंगेशन स्टेप हम 3 प्रोसेस में, 3 वेज में या 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक नया एमिनो एसिड लोडेड ऑन टीआरएनए आएगा और ये बाइंड कहाँ करेगा। अब आपके प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कौन सा साइट खाली है? इन योर एक्सेप्टर साइट। पी साइट था और ए साइट था। पी साइट पे ऑलरेडी टीआरएनए मिथ्योनिन वाला, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन वाला लोडेड है, तो ओनली ए साइट इज वैकेंट, और ई साइट भी वैकेंट है, बट ई साइट पे कोई जेनेटिक कोड्स नहीं है, तो टीआरएनए वहाँ जाके बाइंड करेगा नहीं, तो इसीलिए ए साइट पे। तो ये जो इनकमिंग अमीनो सेल टीआरएनए है ये आके बाइंड करेगा ए साइट पे। तो अब जितने भी अमीनो एसिड आएंगे टीआरएनए के साथ वो ए साइट पे ही आएंगे। सिर्फ पहला आता है पी पे, बाकी सारे के सारे आते हैं ए साइट पे। तो पहला स्टेप, टीआरएनए आएगा इस पे, बाइंड करेगा। दूसरा स्टेप, यहाँ का जो अमीनो एसिड मिथ्योनिन वाला है वो, और इस पे जो अमीनो एसिड है वो, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन शुड बी देयर। एंड तीसरा स्टेप कि ये दोनों अमीनो एसिड मूव करता है एक स्टेप, तो ये टीआरएनए यहाँ आ जाएगा और ये टीआरएनए यहाँ आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन मूवमेंट। हम देख लेते हैं आगे कैसे होता है। सो ये जितने बार आप अमीनो एसिड जोड़ेंगे ये तीनों स्टेप रिपीट होना है। सो फॉर एवरी अमीनो एसिड एडेड इन योर प्रोटीन सिंथेसिस या इन योर प्रोटीन चेन, these 3 steps need to be repeated every time, one by one। तो ये हमारा पहले का स्टेप था जहां हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो ये साइट खाली है जहां मुझे
एक नया अमीनो एसिड को लाना है लोडेड ऑन tRNA. सो जब नया अमीनो एसिड आता है तो दैट विल कम along with ए फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर. दिस इज माई सेकेंड अमीनो एसिड, इसीलिए 2 लिखा हुआ है. सो दिस इज सेकेंड अमीनो एसिड विच इज कमिंग फॉर प्रोटीन सिंथेसिस लोडेड ऑन tRNA. और ये भी आएगा एक फैक्टर के साथ. जैसे आपका पहला अमीनो एसिड आया था कौन सा फैक्टर के साथ, tRNA पे जो पहला अमीनो एसिड आता था आया था फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन. दिस वाज आल्सो नॉट केम, इट आल्सो डिडंट कम अलोन, इट आल्सो केम अलोंग विद सम फैक्टर. ये आया था इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ. तो यहाँ जो नया अमीनो एसिड आ रहा है वो आ रहा है EFTU के साथ. और TU इज ए G प्रोटीन रिक्वायरिंग G प्रोटीन. तो दिस विल कम एंड दिस विल बाइंड एट द A साइट. तो P साइट पे पहले से आपके पास है, A साइट पे ये आके बाइंड किया. ठीक है यहाँ तक आप यहाँ देख लीजिए. सो दिस इज A साइट पे फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन बाइंड है. नया अमीनो एसिड जो अभी लाए हमने वो यहाँ पे बाइंड करवाया. सो सिर्फ दिस EFTU हैव ओनली वन फंक्शन कि ये इस tRNA को यहाँ पे पहुँचा के छोड़ दे. और इस प्रोसेस में ये GTP हाइड्रोलाइज हो जाता है बिकॉज इसके पास TU के पास GTPase एक्टिविटी होता है. सो इट विल हाइड्रोलाइज दिस GTP. तो GTP बिकम्स GDP. जब ये रहेगा तो ये एक्टिव रहेगा, जब ये हो जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. फाइन. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप वी हैव गॉट दिस कॉम्प्लेक्स. तो हमारे पास P साइट पे एक अमीनो एसिड है फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन, A साइट पे एक tRNA है जिस पे एक दूसरा अमीनो एसिड है, बट दोनों अमीनो एसिड अलग अलग है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स की हमें फर्दर ज़रूरत है, वो हम आगे देखते हैं. बट इस EFTU GTP का क्या होगा, एवरी टाइम आपके सेल्स में इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड होती है बिकॉज हर एक अमीनो एसिड के साथ आपको ये चाहिए होता है. और 20 अमीनो एसिड आपके पास होते हैं तो जितने मतलब कम से कम 10 अमीनो एसिड लंबा प्रोटीन है या 50 अमीनो एसिड लंबा प्रोटीन है तो आपको 50 बार ये चाहिए. तो इसको हमें रिसाइकल करने की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट बिकॉज दिस EFTU इज इनएक्टिव, GDP इज इनएक्टिव. ये यहाँ पे तो एक्टिव था, यहाँ पे इनएक्टिव हो गया. क्यों इट इज इनएक्टिव? बिकॉज GTP बिकम्स GDP. तो इसकी बैटरी एनर्जी डाउन हो गई है. सो दिस बिकम्स इनएक्टिव. तो हमें फॉर फर्दर प्रोसेस इसको एक्टिवेट करना चाहिए, करके रखना पड़ेगा टू सप्लाई कंटिन्यूसली फॉर दिस प्रोटीन चेन इलोंगेशन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ GDP को हटा के हमें फिर से GTP डालना पड़ेगा नया. इसको रिप्लेस कर दीजिए बैटरी को एंड GTP ऐड कर दीजिए. तो अगेन इट विल बी एक्टिव. बट ये रिप्लेसमेंट अकेले होगा नहीं, इसके लिए हमें एक दूसरा प्रोटीन चाहिए जिसको बोलते हैं EFTS. सो EFTS इज गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर टाइप ऑफ बिहेवियर. ये एक्सचेंज करने में हेल्प करता है टू रिमूव दिस GDP, ऐड GTP. तो यहाँ देखिए GDP हटा दिया, GTP ऐड कर दिया. सो यू हैव गॉट योर एक्टिवेटेड EFTU. फिर एक नया tRNA आएगा तो वहाँ ये असिस्ट करेगा उसको राइबोसोम तक लाने में. तो अभी हमने देखा EFTU का काम है, इट हेल्प्स एवरी tRNA टू रीच टू द A साइट, उसमें मदद करता है. EFTS का काम है टू रीएक्टिवेट EFTS फॉर नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो वी हैव गॉट दिस कॉम्प्लेक्स टिल नाउ. अभी तक के स्टेप में हमें ये मिला है. अब मैंने बोला था कि इन द केस ऑफ दिस वन हमारे पास 3 स्टेप में रिएक्शन होता है. तो पहला स्टेप था बाइंडिंग ऑफ एन इनकमिंग अमीनो सेल tRNA एट A साइट. तो ये तो हमने कर लिया, दिस हैपेंस. सेकेंड फंक्शन इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. तब मेरा सेकेंड वर्क विल बी गो, दिस इज द सेम थिंग जो आपको दिखा रहे हैं हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड. सो ये हमने कर लिया. सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और पेप्टिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी. सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ द इलोंगेशन.
जो आपको ओवरऑल दिखा रहे हैं कि वी हैव गॉट दिस वन एज ए प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. A new nucleotide amino acid will come. It will bind at the A site. This is going to be recycled here for the fresh cycle. Sorry. Just one. So we requiring 3 elongation factors: EFTU, EFTS, EFG, which is equivalent to EF1A, 1B, and 2. EFTU एंड EFG आर GTP बाइंडिंग प्रोटीन. G का काम आगे आएगा, वो मैं बताता हूँ आपको. EFTU का काम अभी आपने देखा था, जो एवरी न्यूक्लियोटाइड को, एवरी अमीनो सेल tRNA को इनकॉर्पोरेट करता है एट द A साइट. एंड EFTU रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड ऑल अमीनो सेल tRNA विथ अप्रॉक्स द सेम एफिनिटी व्हेन ईच tRNA इज बॉन्डेड टू द करेक्ट अमीनो एसिड. तो ये EFTU हर एक को एक नज़र से देखता है. इट इज़ नॉट गोइंग टू डिफ्रेंशिएट एनी सिंगल एमिनो एसिड कि इस एमिनो एसिड के लिए इसकी थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है, दूसरे एमिनो एसिड के लिए प्रेफरेंस कम है. सो फॉर EFTU एवरी एमिनो एसिड इज द सेम. ठीक है. मैंने और बोला था आपको कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशिएशन फैक्टर और एलोंगेशन फैक्टर, नॉर्मली वी आर गोइंग टू ऐड a small e so that we differentiate this is eukaryotic system. और because इसके साथ GTP associated होता है, so this is having GTPase activity. इसके साथ GTP associated होता है, तो this is having GTPase activity. और TS का काम है कि ये हेल्प करवाता है एक्सचेंज में, जो अभी आपने देखा था कि TS only help in the exchange of guanosine diphosphate to triphosphate. So this behaves as a guanosine exchange protein या exchange factor. So this is guanosine exchange factor. So जो हम नेक्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन, जहां हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब राइबोसोम का जो 50th सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, उसमें 3 प्रोटीन होते हैं. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम 2 प्रोटीन, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम ओनली 1 प्रोटीन, सॉरी 3 प्रोटीन्स. तो बड़े वाले सब यूनिट में एक राइबोसोमल आरएनए का नाम था 23S. ये बिहेव करता है एज ए एंजाइम. दिस 23S राइबोसोमल आरएनए ऑफ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट behaves as an enzyme that is called as peptidyl transferase enzyme, which catalyze the formation of peptide bond formation between the 2 amino acid which is present at the P site and A site. इस दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है एंजाइम, जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. ये एंजाइम आता कहाँ से है? सो दिस इज दिस राइबोसोमल आरएनए विच बिहेव्स एज एंजाइम. तो वो एंजाइम जो एंजाइम जैसे बिहेव करे उसको क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स. सो दिस इज वन काइंड ऑफ राइबोजाइम विच बिहेव्स एज ए पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम. सो ये तो होगा प्रोकैरियोट्स में. सिमिलरली इन यूकैरियोट्स हमारे पास 60S राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है, वहाँ 28S होते हैं. ठीक है. तो हमारे केस में इन यूकैरियोट्स 28S पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जैसे काम करता है, इन प्रोकैरियोट्स 23S करता है, बट दोनों का लार्ज सब यूनिट का ही कंपोनेंट वो है. सो इन बोथ द केसेस लार्ज सब यूनिट बिहेव्स एज ए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. बिकॉज आपका एमिनो एसिड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, जो आपने पहले स्टेप में बिफोर द इनिशिएशन कर लिया था, लोडेड ऑन द टीआरएनए. तो अब इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नॉर्मली जब भी हम कोई बॉन्ड बनाते हैं ना, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. नॉर्मली वेन एवर यू आर गोइंग टू सिंथेसाइज ए न्यू बॉन्ड यू रिक्वायर एनर्जी, बट इस केस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ती है क्योंकि बिफोर initiation of protein synthesis during the activation of amino acid we have already spent 2 ATP. so आपका हर एक amino acid केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. so no further energy needed during the peptide bond formation. तो अब आपके पास ये था हमारे पास सिस्टम ये था कि P साइट पे एक tRNA है जिसपे फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन है, A साइट पे एक दूसरा tRNA है जिसपे एक दूसरा एमिनो एसिड है. तो दिस इज वन एमिनो एसिड जो ए साइट पे है,
ये एक दूसरा अमीनो एसिड है। अब यहाँ देखिए इसका एमिनो पोजीशन जो है ना, ये ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है बाय फॉर्मेलेटेड। तो होगा क्या, रिएक्शन कैसे होता है ये आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे भी, यहाँ पे अब एमिनो ग्रुप का, एमिनो पोजीशन का, जो वो एमिनो एसिड जो ए साइट पे है, उस एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर द ऑफ द एमिनो ग्रुप प्रेजेंट एट द ए साइट। ये अटैक करता है इस कार्बोक्सी टर्मिनस पे जो पी पोजीशन पे है। तो दिस एमिनो ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन ऑफ एमिनो पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ द ए टर्मिनस अटैक्स ऑन द कार्बोक्सी ग्रुप, जो कौन सी कार्बोक्सी, जो CCA के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस कार्बोक्सी टर्मिनस पे अटैक करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा एज ए रिजल्ट, यहां से कार्बोक्सी टर्मिनस का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म। तो जो एमिनो एसिड यहां था, सो दैट एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड विल बी शिफ्टिंग हियर। सो एज ए रिजल्ट, so amino acid which was previously here has been shifted to this one. So this is my amino acid number 2 and this was my formulated methionine amino acid number 1. तो अब दोनों एमिनो एसिड जुड़ गए एक पेप्टाइड बॉन्ड से, और दोनों एमिनो एसिड कहाँ पे आ गए, ए साइट पे। तो ऑन ए साइट वी आर हैविंग 2 एमिनो एसिड लोडेड ऑन tRNA एंड पी साइट पे जो tRNA है वो tRNA फ्री हो गया, इस पर कोई भी नहीं है। सो दिस tRNA इज blank, it does not have any amino acid. So this is how peptide bond formation occurs. अब जब अगला एमिनो एसिड आएगा, अब क्या, दिस इज हाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके बाद यहां तक ठीक है, और साला रिपीट इट। सर अभी तक EFG हम यूज नहीं किए ना? नहीं, अभी तक हमने नहीं किया। EFG का काम होगा फॉर द ट्रांसलोकेशन स्टेप। इस दोनों को, जो ये दोनों है, इसको एक स्टेप मूव करके, एक कोड मूव करने के लिए EFG की जरूरत पड़ेगी। तो होगा क्या, ये tRNA आ जाएगा इस जगह पे और ये tRNA आ जाएगा इस जगह पे। कहने का मतलब कि आपका राइबोसोम मूव कर रहा है, राइबोसोम एक स्टेप मूव करेगा तो सभी एक एक चेयर, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 चेयर पड़े हुए हैं, वी आर हैविंग 3 चेयर, एक चेयर ये हो गया, एक चेयर ये हो गया, एक चेयर ये हो गया, और एक पर्सन ये है, दिस इज पर्सन मीन्स पर्सन नंबर 1, दिस इज पर्सन नंबर 2। हमने सभी को एक एक स्टेप मूव किया, तो क्या होगा, 1 नंबर वाले इस जगह पे आ जाएगा, 2 नंबर वाले इस जगह पे आ जाएंगे, और ये जगह फिर अगेन खाली हो जाएगा। समझे बात? यस सर। सो उसके लिए जो यह मूव कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और इस ट्रांसलोकेशन के केस में हमें EFG की जरूरत पड़ेगी। अगेन ये EFG भी GTP के साथ आएगा। सो दिस इज हाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। ये आपका tRNA पे है जिसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एमिनो ग्रुप जो ए साइड पे है, ये अटैक करता है इस कार्बन पे। ओवरऑल यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस विल कम एट दिस पोजीशन। सो ये पी साइड पे जो tRNA है दैट विल बी फ्री, उसके पास कुछ भी नहीं बचा अभी, एंड ए साइड पे सारे एमिनो एसिड आ गए। सो दिस tRNA इज ब्लैंक, वैकेंट, इट डज नॉट हैव एनीथिंग, और ए साइड पे जो भी है उस पर सारा प्रोटीन आ गया, पूरा पेप्टाइड चेन आ गया। ये दिस इज माय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब वंस यू हैव फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड, आपके ए साइड पे दोनों एमिनो एसिड हैं, लोडेड हैं, तो थर्ड फैक्टर की हमें जरूरत पड़ती है जिसका काम है ट्रांसलोकेशन, जो आपके एमिनो एसिड को, सॉरी प्रोटीन चेन को या फिर राइबोसोम को एक स्टेप आगे ले जाता है। तो वो AUG जो पी साइड पे था वो आ जाएगा अब
ई साइट पे, जो कोड यहाँ था वो आ जाएगा पी साइट पे। तो यहाँ का टीआरएनए आ गया यहाँ पे और यहाँ का टीआरएनए आ गया यहाँ पे ई साइट पे, और ये साइट खाली हो गया। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अभी हम सिर्फ एक ही स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप इनकमिंग ऑफ न्यू टीआरएनए लोडेड विथ अमीनो एसिड, सेकेंड स्टेप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप ट्रांसलोकेशन। तो जब आप एक अमीनो एसिड ऐड करेंगे तो ये तीनों स्टेप रिपीट किए करेंगे। तो हम ही अभी तक किया कि ये टीआरएनए यहाँ आ गया तो यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा ब्लैंक टीआरएनए, तो एक ई साइट विल बी अगेन फ्री। आपके पी साइट पे एक टीआरएनए है जिसपे सारे के सारे पेप्टाइड अभी हैं। अब फिर से ये टीआरएनए, नया टीआरएनए अमीनो एसिड नंबर 3 आएगा। दिस विल कम अलोंग विथ EF TU आएगा GTP के साथ। अब ये अमीनो जब यहाँ आ जाएगा, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि दिस अमीनो एसिड कम्स हियर एंड दिस इज हैविंग अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड के पास अमीनो ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स ऑन दिस कार्बोक्सी टर्मिनस। एज ए रिजल्ट दिस 2 अमीनो एसिड विल बी ट्रांसफर हियर। तो इस जगह पे आपके 3 अमीनो एसिड हो गए और ये टीआरएनए फ्री हो गया। फिर उसके बाद फिर आएगा EFG, तो ये एक स्टेप और जाएगा। तो इसी तरह से आपके चेन इलोंगेट होते रहते हैं फर्दर। ठीक है, यहाँ तक इसमें हुआ क्या, अनलोडेड टीआरएनए इन द पी साइट विल बी शिफ्टेड टू द ई साइट। अब पहले केस में पी साइट पे था AUG, जो शिफ्ट हो गया ई साइट पे ड्यूरिंग दिस ट्रांसलोकेशन स्टेप। ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम रिलेटिव टू द मैसेंजर RNA, राइबोसोम मूव करता है, ये याद रखिएगा, mRNA मूव नहीं करता। इन्वॉल्व्स द GTP बाइंडिंग EFG। The size and shape of EFG is comparable to that one EFTU। ये ऑलमोस्ट बराबर होता है इसी के जैसा। The tRNA with attached nascent polypeptide is pushed from the A site to P site। P site वाला E site पे और A site वाला P site पे। Unloaded tRNA that was at the P site shifted to the E site and from E site it will exit। Since the tRNA are linked to messenger RNA by codon-anticodon base pairing, the messenger RNA also moves relative to the ribosome। Is it clear up to here? हमने देखा एक्टिवेशन, इनिशिएशन एंड इलोंगेशन बाय एवरी अमीनो एसिड। ठीक है यहाँ तक? और एनी क्वेश्चन नहीं बनी जावे? यस। जो स्मॉल सब यूनिट था 16S, वो साइंडाल गानों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म 60S नहीं, 60S कहाँ था? 16S राइबोसोमल RNA। यस सर, वो साइंडाल गानो सीक्वेंस के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था ना। उसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं पड़ता जब नहीं हाँ, वो इसीलिए था, दैट वाज जस्ट जैसे ही आपके इनिशिएशन फैक्टर निकले, उसको उस कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बनाने में हेल्प किसने किया था? IF3। तो जैसे ही आपने सारे इनिशिएशन फैक्टर हटा दिया तो वो बॉन्ड ऑटोमेटिकली वीक हो गया। ठीक है, और उस साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस की बाइंडिंग 16S राइबोसोम के साथ इसीलिए करवाया था ताकि AUG पी साइट पे आ जाए। तो ओनली दैट वाज द पर्पस, और उसमें हेल्प किया था इनिशिएशन फैक्टर 3। तो जब आपने इनिशिएशन फैक्टर 3 को निकाल दिया तो दैट बॉन्ड, दैट एसोसिएशन इज लिटिल बिट वीकर, सो वो मूव करेंगे। जब EFG आएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल मूव। ओके सर। बॉन्ड हाइड्रोजन, इट वाज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इट विल बी लिटिल बिट इजी, मोर फ्रेजाइल बॉन्ड, सो इट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी बोला था कि इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में या ट्रांसलोकेशन में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जहाँ भी GTP की जरूरत इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ GAP एंड GEF की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपने यहाँ, अगर आपने इस स्टेप में देखा होगा कि हमने ये GEF यूज किया। अब डिफरेंस क्या है इस GEF में और जो हमने EFTU वाला यूज किया था? EFTU,
इसके साथ जीटीपी हमेशा एसोसिएटेड था, जीटीपी या जीडीपी एसोसिएटेड था, ठीक है। मीन्स EFTU इज एसोसिएटेड, जब जीटीपी इसके साथ बाइंड होगा तो दिस विल बी एक्टिव, और जब ये नहीं बाइंड रहेगा, इसके साथ जीडीपी रहेगा, तो ये इनएक्टिव होगा EFTU। इस केस में आपको एसोसिएशन नहीं होता है, दिस कम्स अलॉन्ग विद जीटीपी, बट जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो जीडीपी सेपरेट हो गया। यहाँ आपको एक्सचेंज फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप यू नीड टू एक्सचेंज इट नीड्स एवरी टाइम जीटीपी। ये मेरे पास एक बोतल है, दिस इज ए बोतल, जहाँ मुझे एक ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैंने ढक्कन को तोड़ दिया या खोल दिया या यूज कर लिया या सम पार्सल इट इज डैमेज, तो आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट इस केस में वो ढक्कन हमेशा लगा नहीं होता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद जीडीपी। whenever this EFG comes in the reaction, it comes along with GTP, it requires GTP, but this is does not mean कि this जब इसके साथ GTP नहीं है तो ये इनएक्टिव है, जब ये रिएक्शन में आएगा तो आएगा ATP के साथ। तो इस केस में EFTU के केस में हमें गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस GDP एंड पुट GTP तो ये एक्टिवेट होगा। इस केस में हमें एक्सचेंज फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें हर एक टाइम में एक नए जीटीपी की जरूरत पड़ेगी। नो एक्सचेंज फैक्टर रिक्वायर्स हियर। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कि EFTU एंड EFG बोथ आर जीटीपी एसोसिएटेड प्रोटीन, दोनों को एक्टिवेट या रिएक्शन में करने के लिए जीटीपी चाहिए होता है। बट EFTU हमेशा किसी न किसी जी प्रोटीन के साथ, जीटीपी के साथ या जीडीपी के साथ एसोसिएटेड होगा, और जब जीडीपी डाइफॉस्फेट रहेगा तो ये दिस विल बी इनएक्टिव। तो यू नीड टू रिप्लेस दिस डाइफॉस्फेट विद द ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ हमें एक्सचेंज फैक्टर चाहिए होता है जो रिप्लेसमेंट करे उसको। EFG के केस में हमें रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए होता है, वी रिक्वायर ए न्यू जीटीपी, तो नो GEF इज नीडेड देयर। ठीक है, सो दिस वाज इलोंगेशन। सो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू ऐड ए न्यू अमीनो एसिड, same 3 steps will be there. First, a new nucleotide, new amino acid loaded on tRNA will come at the A site. उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का अटैक करेगा कार्बोक्सी टर्मिनस पे, उस अमीनो एसिड का जो पी साइट पे है। सारे अमीनो एसिड जो पी साइट पे एसोसिएटेड थे वो ए साइट पे आ जाएंगे टीआरएनए पे। पी साइट वाले टीआरएनए फ्री हो जाएंगे जिस पे कोई अमीनो एसिड नहीं रहेगा। उसके बाद EFG आएंगे जो इसको एक स्टेप मूव करेगा, तो पी वाला टीआरएनए आ जाएगा ई पे, ए वाला टीआरएनए आ जाएगा पी पे, और ए खाली हो जाएगा। ये हुआ आपका इलोंगेशन स्टेप, एंड द लास्ट स्टेप इज द टर्मिनेशन स्टेप। इन द टर्म जब दिस इज द 3 जेनेटिक कोड्स विच नॉर्मली कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडॉन, UAA, UGA एंड UGA। अब इसके लिए हमारे पास कोई टीआरएनए होता नहीं है, तो व्हेन दिस एनी ऑफ दिस 3 कोड्स कम्स टू द ए साइट, आपके पी साइट पे तो टीआरएनए लोडेड ऑन द मैसेंजर प्रोटीन्स हैं, ए साइट खाली है, इसके लिए कोई टीआरएनए है नहीं। तो व्हेन दिस एनी ऑफ दिस जेनेटिक कोड, मान लीजिए हम UAA ले लेते हैं, UAA, तो कोई टीआरएनए यहाँ के बाइंड नहीं करता, बिकॉज नो टीआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस वन। तो यहाँ खाली रहेगा तो कैसे क्या होगा, कोई ना कोई आके बाइंड करता है, तो देयर कम्स रिलीजिंग फैक्टर। सो चेन टर्मिनेशन रिक्वायर्स ए रिलीजिंग फैक्टर RF1, RF2, RF3. Again, RF3 is a small GTP binding protein. RF1 and RF2 recognizes and bind the stop codon. आपको याद करना पड़ेगा RF1 किसको रिकॉग्नाइज करता है, RF2 किसको रिकॉग्नाइज करता है। RF1 recognizes UAG and UAA, and RF2 recognizes UGA and UAA. So whenever UAA will come at the A site, तो UAA इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय RF1 और RF2, दोनों को रिकॉग्नाइज करता है।
तो RF1 एंड RF2 विच इक्विवेलेंट टू इन दी स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है tRNA के. सो दिस इज स्ट्रक्चरली वेरी वेरी सिमिलर टू tRNA. तो वो आके यहाँ बाइंड करता है. और ये हुआ आपका रिलीजिंग फैक्टर 1 विच इज लुकिंग लाइक tRNA बट tRNA है नहीं. इस पर कोई एमिनो एसिड लोडेड नहीं है, इस पर एक वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है. So RF1 and RF2 binds at the termination codon and induce peptidyl transferase to transfer the growing polypeptide on this water molecule. तो यहाँ का पेप्टाइड बॉन्ड चेन ट्रांसफर हो जाता है इस वाटर मॉलिक्यूल पे. अब जब वाटर पे ट्रांसफर करने के लिए आएगा तो वाटर तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा नहीं. सो दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम देयर बिकॉज नो पेप्टाइड बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन वाटर एंड द प्रोटीन. इसको बाइंड करने के लिए RF1 को और RF2 को बाइंड करने के लिए एक तीसरे फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं RF3. सो RF3 नॉर्मली डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्टॉप कोडॉन्स. RF3 ओनली हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ RF1 एंड RF2 टू द A साइट. RF1 इसको रिकॉग्नाइज करेगा, RF2 इसको रिकॉग्नाइज करेगा. इस दोनों की बाइंडिंग में RF3 हेल्प करेगा which requires a GTP. Once releasing factor occupies the A site, a peptidyl transferase, जो लार्ज सबयूनिट का कंपोनेंट है, catalyzes the transfer of the peptidyl group to the water and ultimately it will be hydrolyzed. RF3 पे जो GTP था, so hydrolysis of GTP on RF3 causes the conformational changes that results in the releasing factor. So सारे RF1 RF2 जो वहाँ थे या either RF1 और RF2 at A site that will be free. A ribosomal recycling factor is required for elongation factor G, GTP and IF3 releasing factor को रिलीज करवाने के लिए. So मैं समराइज कर देता हूँ पहले से शुरू से. इनिशिएशन हमने शुरू किया था 30s के साथ. इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 आया था. उसके बाद 1 बाइंड किया था A साइट पे, P साइट वैकेंट था. सो फर्स्ट tRNA लोडेड विथ फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन केम एट द P साइट. जब उसके बाद जब IF फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन tRNA पे लोड होके आया था तो उसके साथ आया था इनिशिएशन फैक्टर 2 अलॉन्ग विथ GTP. ठीक है. अब इस जब वो आ गया तब देन वी रिक्वायर 50s आएगा. IF3 विल गो. IF2 का GTP हाइड्रोलाइज हो गया तो वो निकल गया. IF1 का काम हो गया फ्रॉम A साइट तो वो निकल गया. तब हमारे पास बन गए थे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. देन ए सेकेंड एमिनो एसिड विल कम लोडेड ऑन tRNA अलॉन्ग विथ EFTU. वो आके बाइंड करेगा A साइट पे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, दोनों एमिनो एसिड आ जाएंगे A साइट पे. P साइट पे tRNA फ्री रहेगा, पूरा मैसेंजर RNA एक स्टेप मूव करेगा. तो खाली जो ब्लैंक tRNA था वो E साइट पे से एग्जिट कर जाएगा. अब सारे के सारे पेप्टाइड आ गए P साइट पे, A साइट अगेन खाली हो गया. फिर तीसरा tRNA आएगा. तो ये साइकिल चलते रहते हैं. At the end of the things, when any of the 3 stop codon will come at A site, तो जिसके लिए हमारे पास कोई tRNA नहीं होता है तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है ऑन रिलीजिंग फैक्टर, जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है tRNA के साथ. जो देखने में तो tRNA लगता है बट tRNA होता नहीं है. तो वहाँ कोई एमिनो एसिड नहीं होता, वहाँ वाटर मॉलिक्यूल होता है. एंड अल्टीमेटली ऑल द पेप्टाइड विल बी ट्रांसफर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट विल बी रिलीज्ड. ठीक है. So this is the overall story of protein synthesis in the prokaryotic system. तो ये आप यूकैरियोटिक वाला भी मत देखिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी. प्रोकैरियोटिक में वी रिक्वायर इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2, IF3 जिसके अपने अपने काम थे. इलोंगेशन फैक्टर EFTS, EFTU, EFG. रिलीजिंग फैक्टर RF1, RF2, RF3. सबका काम अगर आप देखेंगे, इनिशिएशन फैक्टर 1 blocks the A site. IF3 does not allow 50s to bind to the 30s. IF2 comes along with the first initiator amino acid loaded on tRNA. EFTU
comes with every tRNA loaded with the amino acid, जब सेकेंड अमीनो एसिड ऑनवर्ड्स. EFTS जो इसको रीएक्टिवेट करवाता है TU को. EFG फॉर ट्रांसलोकेशन. RF1 RF2 recognizes some of the stop codons, and RF3 help in the binding of ribosomes with these releasing factors. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this was overall protein synthesis in the prokaryotic system. अब अगर हम ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमने कहाँ कहाँ एनर्जी खर्चा किया प्रोटीन सिंथेसिस में. बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको 100 एमिनो एसिड लंबा प्रोटीन बनाना है तो कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी आपको. मैंने बोला था कि प्रोटीन सिंथेसिस इज ए कॉस्टली प्रोसेस. सो पहला एटीपी हमने यूज किया था ड्यूरिंग द एक्टिवेशन प्रोसेस. हर एक एमिनो एसिड को हमें एक्टिवेट करना था, जहां हमने एटीपी यूज कंज्यूम किया था, और दैट वाज इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी, बिकॉज एटीपी को कंज्यूम करके हमने एएमपी बनाया था. तो रफली फॉर एवरी एमिनो एसिड वी रिक्वायर 2 एटीपी विच इज इक्विवेलेंट. तो मान लीजिए आपको 100 एमिनो एसिड लंबा प्रोटीन बनाना है तो आपको 200 एटीपी तो आपने एक्टिवेशन में खर्चा कर लिया. ठीक है, ये दिस इज क्लियर. ये तो आपको याद है सबको. सेकंड, जो पहला एमिनो एसिड आएगा इस 100 एमिनो एसिड में से, जो पहला एमिनो एसिड आएगा दैट इज फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन, वो आएगा इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ. यहां एक जीटीपी चाहिए, तो पहले एमिनो एसिड को एक जीटीपी चाहिए. बाकी जो 99 एमिनो एसिड हैं वो आएगा EFTU के साथ. यहाँ भी एक जीटीपी चाहिए. तो हर एक एमिनो एसिड को टीआरएनए के साथ आने के लिए, राइबोसोम पे बाइंड करने के लिए एक जीटीपी चाहिए. तो 200 एटीपी तो फर्स्ट स्टेप में, हर एक इनकमिंग के लिए एक एटीपी, तो 100 एटीपी यहाँ, तो 300 एटीपी हो गया. एंड इन द लास्ट ट्रांसलोकेशन में हमें कोई नहीं चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई नहीं चाहिए, टर्मिनेशन के लिए एक एटीपी चाहिए. ठीक है, एक एटीपी चाहिए टर्मिनेशन में. तो टोटल हाउ मेनी? 301 एटीपी रफली. अगर मैं सिर्फ बात करूं इन दी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस की, वहां वो आपने देख लिया. सो दिस इज एक एटीपी हमने हर एक एमिनो से जब आएगा तो यहाँ खर्चा होगा. एक एटीपी पहले में और बाकी 99 इस केस में. सर यस, EFG के साथ भी तो GTP. हाँ मैं तो आपको कितनी बार ट्रांसलोकेट करवाना है? हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू ट्रांसलोकेट? 99 टाइम्स. यस सर. तो 100 एमिनो एसिड का लंबा बनाना है तो 99 टाइम्स यू नीड टू ट्रांसलोकेट इट, बिकॉज पहला एमिनो एसिड तो यहीं बाइंड किया हुआ है, बाकी 99 टाइम्स आपको ट्रांसलोकेट करवाना है. तो 301 पहले हमने किया था और 99 हियर, तो 400 एटीपी. ठीक है. सो रफली 4 टाइम्स जितने एटीपी लंबा आप बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, उसका 4 टाइम्स आपको एटीपी चाहिए होगा या एटीपी इक्विवेलेंट चाहिए होगा. तो इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत लंबा प्रोसेस है, खर्चीला प्रोसेस होता है. इसीलिए कोई भी सेल्स प्रोटीन बनाने से पहले बहुत सारे स्टेप्स लेता है. जैसे हमने इंट्रॉन्स को हटा दिया था कि अगर इंट्रॉन्स हम रखेंगे तो उतना लंबा अनयूजुअल प्रोटीन बनाने पड़ेंगे, वेस्टेज होगा जो एनर्जी का. सो प्रोटीन सेल्स हमेशा एनर्जी सेव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं. तो दिस स्प्लाइसिंग इज वन ऑफ सच काइंड ऑफ स्टेप्स वेयर वी कंज्यूम्स, वी सेव्स एनर्जी. ये एनर्जी कन्वर्सन प्रोसेस, हाउ मच एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये समझ में आ गया? यस सर. For activation of every amino acid in the first step, we require 2 ATP equivalent. तो सबसे ज़्यादा खर्चा हमने वहीं करा था. उसके बाद जब भी एमिनो एसिड टीआरएनए पे लोड होके आएगा बाइंडिंग साइट पे राइबोसोम्स पे, तो एक एटीपी के साथ आएगा. पहला एमिनो एसिड इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ, इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ आता है, बाकी 99 एमिनो एसिड EFTU के साथ आएगा.
पहला अमीनो एसिड तो यहीं आके बाइंड करता है, तो उसको ट्रांसलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाकियों को 99 टाइम्स आपको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा, सो दैट एवरी टाइम यू आर गोइंग टू डू ट्रांसलोकेट यू रिक्वायर 1 ATP देयर। तो आपको 200 इन द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद 1 फॉर द इनिशिएशन, 99 फॉर द EF। आप इसके दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज इनिशिएशन फैक्टर 2, दिस इज EFTU, देन 99 आपको चाहिए EFG के साथ, एंड 1 चाहिए आपको टर्मिनेशन के लिए, मीन्स IF3 के साथ। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो रफली इट विल बी ऑलमोस्ट 400 ATP। ठीक है, Yes, sir. this initiation we will talk once we will finish the eukaryotic protein synthesis also. So tomorrow we will see the eukaryotic protein synthesis process। उसमें भी ऐसे ही होंगे, लेकिन in case of mRNA of prokaryotic eukaryotic system is little bit complicated, वो इतना लंबा स्ट्रेट नहीं होता है। So there number of initiation factor एसोसिएटेड होता है इसके साथ, मैसेंजर RNA के साथ, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं हमें, तो वो दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। अदरवाइज बाकी प्रोसेस यही होता है, पहले आपको एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना होगा, फिर इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन, एंड देन लास्टली प्रोसेसिंग। एनी क्वेश्चन एनीवन इज हैविंग? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम।